Hi, there is a disturbance. क्या? So Jai Jinendra will start with Navkar mantra. Om Namo Arihantanam. Om Namo Sabasiddhanam. Om Namo Ayuriyanam. Om Namo Ujjayanam. Namo Loe Sabasahunam. So Panch Namo Kar. सब पाप पनासनु मंगलानां च सत्ते सिंह परमं भावै मंगलम् ओम नमो हरिहंतानां. Good morning everyone. As you all know, this is the 16th show of Applied Jainism और ये हमारा part 2 है of a very interesting discussion that we had last month on जल है तो कल है. Last month हमने water के बारे में समझा, water के बारे में एक बहुत ही नई जानकारी हासिल की. And this session is about a new paradigm in our understanding about water pollution, जो कि सबसे बड़ी परेशानी है आज की तारीख में. How do we address this problem? So this session is about that. See, I mean, a lot of people has already spoken and done a lot about water pollution, global warming, climate change, and a lot of people have spoken about, a lot of work is also happening, but still we see that, I mean, the difference to the atmosphere, the difference to the climate, or the difference to the Panch Tattva is like very minuscule. Everywhere we only hear the problem. So now, where in this area, what is going wrong? What are those structural issues where the synchronization between the problem and the solution that the mankind is looking at, where is it getting misaligned, and there what else can be done or how it needs to be looked at? That's the understanding our expert speaker Vishal Bhai Mehta himself been doing lots of work on UN SDG relating to water pollution, sanitation. He's been doing a lot of work, so he's going to bring a very different perspective to this problem. So with this, I would request Vipin sir to say a few words and then start the session. Good morning, everybody. Jai Jinendra, Jai Shri Krishna. I'm so glad that we have applied Jainism. Basically, it is on. I wouldn't use word only Jainism. It's on spirituality. How the spirituality is connected to the various aspects of our life, and the most important aspect in our life is climate. And I'm so glad that Sangeeta and Vishal and all other people have taken this, very important task to educate all of us on the aspects of climate or the atmosphere. Vishal is I'll tell you, is a great researcher, and whatever subject he takes, he goes into the depth of it. And though I am his teacher, but I'll tell you, there are so many things which I'm learning from him. So I'm proud of my students like Sangeeta and Vishal. Will not waste more of your time, and let's have some important aspect of water. जैसे कहा है कि जल है तो कल है, और एक शब्द हम यूज करते हैं, जल है तो जीवन है.
Our whole existence depends on the water and good water. So let's have wonderful session by Vishal. Thank you. Yeah, Dr. Nehal, Professor Nehal, if you want to introduce Vishal, yeah. Jai Jinendra Badhane. A warm welcome to everyone attending this session. I'm Professor Nehal Dagli, and I'm here to introduce our very knowledgeable Mr. Vishal Mehta. Vishal Bhai is an engineer, entrepreneur. He also holds a degree, diploma in Jain philosophy from Mumbai University. He is co-founder of a research-based social sector startup, organizing researching on disruptive technologies for preventing environmental noise, pollution, restoration of polluted water bodies, and fixing carbon emission through farming of selective mob crops, which can sequester massive amount of carbon in short cycle. In our previous session, Jal Hai To Kal Hai, he very nicely made us understand the different paradigm about the water and its memory. This has made us think in a totally different way to save and love the true element of our earth, that is water. But as we all see around us, water is getting deteriorated and contaminated, due to which we are facing and going to face many more problems in future. But don't worry, our extremely learned Vishal Bhai is going to take care of it today, and his today's talk about water pollution. So now I would request Vishal. Yeah, Vishal Bhai, yeah, over to you. Yeah. Sadar Pranam and Jai Jinendra, Jai Shri Krishna to everyone. Thank you very much, Bipin sir, for such a nice words, and Nehal Bain for reintroducing me again in the second part 2 series of this lecture. I'm going to start a presentation on this. One second. So can you see my screen? Yeah, it's coming up, Vishal ji. I think it's slightly. Oh, okay. Yeah. Yeah, it's coming up now. All right. So देखिए हमारा जो पिछला लेक्चर था, इट वाज अबाउट वाटर. ये जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, ये सिर्फ पानी के ऊपर नहीं है, पानी के प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन के ऊपर नहीं है. दिस विल प्रोवाइड अ जनरल टेम्पलेट टू डील विथ ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन. देखिए आपकी अगर कोई भी गाड़ी अगर खराब हो जाए, तो उसकी मरम्मत करने के लिए आपको जो भी एक जो भी नॉलेज चाहिए, एक अप्रोच होता है, उसके लिए जो टूल किट एक जो होती है, पकड़ पाना औजार, उसके वो लगभग स्टैंडर्ड होते हैं. उसका अप्रोच एक जो है फॉल्ट फाइंडिंग का, वो लगभग सेम रहता है. तो सेम यहाँ पे भी आज हम जो बात करेंगे वो स्पेसिफिक पानी के प्रदूषण या एयर पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन, ऐसा एक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे. किस टाइप का एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए टू डील विद सच ए क्रॉनिक प्रॉब्लम. जैसा संगीता जी ने बताया कि भाई ये एक बहुत लंबे समय से चले आ रही समस्या है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम कर चुके हैं, बट फिर भी ग्राफ कहीं पे भी नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ही जा रहा है. So how a common man with application of little mind, he can create a framework कि जिसके कारण एक कॉमन सिटीजन भी उसमें पार्टिसिपेट करे, एंड टुगेदर दे ऑल कैन मेक अ वेरी ड्रास्टिक इम्पैक्ट. तो ये इसकी हम एक थियोरी एंड सम प्रैक्टिकल दोनों की चर्चा करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. As I said, it's very chronic problem. बहुत सालों से ये कंपाउंड होते ही जा रहा है.
सो अब हमें इसके खाली सिम्टम्स को नहीं देखना है कि भाई पानी इतना गंदा क्यों है, हवा में इतना कार्बन क्यों आ गया है, उसके लिए क्या करना है। नहीं, अगर ये इतना आसान होता तब तो ये कब का सॉल्व हो गया होता। इसके तो सोल्यूशन भी ऑलरेडी अवेलेबल है, बट फिर भी नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है। हमें सोल्यूशन की चर्चा करने से पहले देखना पड़ेगा कि ये पूरे खेल में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, who are against pollution और who are for pollution। मतलब एनवायरनमेंट को का बैलेंस कौन बिगाड़ रहे हैं, कौन उसको ठीक कर रहे हैं, कौन किस पे कितना भारी पड़ रहा है, कौन कितना कमजोर पड़ रहा है और क्यों। और उसमें से हमें समझ आएगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन पहले हम खिलाड़ियों को देखते हैं और बाद में फिर आगे की हमारे खेल की क्या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए वो हम देखेंगे। सबसे पहला खिलाड़ी है जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर इन दिस प्रॉब्लम इज अवर साइंटिफिक कम्युनिटी, और वी कॉल इट एज ए टेक्नोक्रेट। जो हमें तरह तरह के टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एक उसकी इन्वेंशन करते हैं, हमारे सामने सोसाइटी में लेकर आते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई नए ही अभी रिसेंटली समस्या पैदा हुई है, पहले थी नहीं। समस्या पहले भी थी और सोल्यूशन भी पहले थे। तो फिर भी आज कोई हमारी रियलिटी में चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ था ही नहीं है, सडनली आज आया है और इसके कारण पहले का बहुत सारा पाइलअप हो गया है। नहीं, दिस इज नॉट द केस। बट डे बाय डे ये सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। कारण यह है कि ये जो भी इनोवेटर्स है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, ये अपने आप में ये चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। अच्छा, वो नहीं कर सकती तो कौन करेगा भाई? चलो, जिन्होंने एक टेक्नोलॉजी की दुकान खोल दी है, मतलब से दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्यूशन। आपको आपके घर का कचरा कंपोस्ट करना है, हमारे पास आओ, हम करके देंगे। पानी ठीक करना है, गंदा पानी, तो हम कर देंगे। दीज टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। बट अगेन उन लोगों ने दुकान खोल के रखी है, पर दुकान में कोई आता ही नहीं है। और क्यों आए? what is the rationality कि भाई कोई ये काम के पीछे 100 रुपया भी खर्च क्यों करे? ये लोग क्या है, अपने आप को मार्केटिंग करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर जितना काम होना चाहिए उतना वो अपने आप कर नहीं पाते। दूसरे खिलाड़ी कौन है हमारे? गवर्नमेंट, the most powerful entity, the supposed to be most powerful entity। बहुत शक्तिशाली है, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, कैपेबिलिटीज है। अलग अलग लेवल पे ये लोग इंटरवीन कर सकते हैं, पॉलिसी ला करके, उसके एडमिनिस्ट्रेशन करके, पुलिसिंग, एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ as far as the parameters of environments are concerned। लेकिन इनकी समस्या देखिए, ये इनका जो एक अप्रोच है ना, इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच। मतलब एक सेंटर से डिसाइड होगा, कोई एक निर्णय लिया जाएगा और फिर पूरे देश में इम्प्लीमेंट होगा। ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में ये पूरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड समस्या एनवायरनमेंट की, इसको एड्रेस करना एक बहुत ही कम्बरसम जॉब है। पुट योरसेल्फ इन दैट पोजीशन एंड अंडरस्टैंड, ये इतना आसान काम नहीं है। इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर, नॉट जस्ट कॉस्ट बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। ठीक है, अच्छा, दूसरी एक सबसे बड़ी मुख्य बात देखिए, सबसे पहला सरकार का जो उसकी जिम्मेदारी है वो क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी है हर हाल में सत्ता में बने रहना। अगर आपको प्रजा का भला भी करना है तो भी सत्ता में रहना बहुत बहुत अत्यंत आवश्यक है। दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, अब इसके कारण होता क्या है भाई, बड़े पापड़ बेल के वो सत्ता में आता है कोई एक पक्ष, जैसे ही उसने काम करना शुरू किया, 2-3 साल हुए नहीं, वापस नए इलेक्शन, फिर अभी फोकस वापस चेंज हो गया। जो डेवलपमेंट एजेंडा है, प्रोग्राम्स है, उस पे से फोकस हटके प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है। और सत्ता में रहने के लिए बहुत सारे फिर कोएलिशन पार्टनर्स होते हैं, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट। तो यहाँ पर उनके जो गोल्स होते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल गोल्स, वहाँ बहुत सारे ट्रेड ऑफ हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि दिस इज स्टिल अ रैशनल चॉइस।
ये एक तर्क संगत निर्णय है. If you are into that position of the government, this is absolutely correct to behave in this way. तो आज ये जो सेटअप है उसमें हम सिर्फ सरकार के ऊपर ये एक जिम्मेदारी छोड़ दे कि भाई ये पर्यावरण की इतनी बड़ी समस्या आप समाधान करो, हमने आपको चुना है इससे निपटने के लिए. That is not going to happen. We have to accept that fact. अब सरकारें तो ठीक है, बट जॉइंट गवर्नमेंट, यू नो, यूनाइटेड नेशंस, जहाँ सब लोग एक, इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी. सब पूरे विश्व के सारे लीडर्स आकर के इस समस्या के ऊपर चर्चा करते हैं, समाधान करने के लिए कुछ सोल्यूशन निकालते हैं. हर साल हम देखते हैं ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती है, लेकिन हमारी रियलिटी, हमारी परिस्थिति में कोई 1% का भी सुधार हुआ नहीं है अभी तक. इन सब लोगों ने मिलकर के एक ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना दिए. पूरे विश्व की सारी जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी, हंगर, यू नो, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, वाटर एंड सैनिटेशन, क्लाइमेट एक्शन, तरह तरह के गोल्स एक डिजाइन कर दिए कि भाई एक विश्व को बहुत अच्छी जगह बनाने के लिए ये 17 गोल पे हमें काम करना है. 2030 का एक टाइमलाइन नक्की कर लिया. एंड बड़ा, इट्स वेरी वेल आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम. गोल्स क्लियर कट है, मेजरेबल टारगेट्स है, प्रोग्रेस कितना हुआ वो चेक करने के इंडिकेटर्स है, ये सब कर दिया. लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन जो है, जिसका किसी के पास जवाब नहीं है, इन सब का खर्चा कौन उठाएगा और पैसा आएगा कहाँ से. देखिए, ये एक सेकंड, हर एक देश की अपनी एक रेवेन्यू कैपेसिटी है इतनी, मतलब एक ये इसकी इंटरनल कैपेसिटी है, ये इनको आने वाली बाहर की जो फॉरेन एड है वो, लेकिन उसको, उसके जो ऑब्जेक्टिव है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग पुट टुगेदर, वो मीट करने के लिए उसको इतना बजट चाहिए. अब ये गैप कहाँ से फिलअप होगा? ये हर एक देश की देखिए परिस्थिति लगभग ऐसी ही है. दिस इज ऑल अफ्रीकन कंट्रीज, बट इवन एशियन, अमेरिकन, यूरोपियन, इट्स नो बेटर. तो मतलब आप ये इतने सारा काम करने के लिए रिसोर्सेस कहाँ से जुटाएंगे, इसका कोई जवाब ही नहीं है इन लोगों के पास. तो अगेन, यू नो, इट्स प्रॉब्लम इज टॉस्ड फ्रॉम हियर. हमारे अगले खिलाड़ी कौन है? तो भाई कॉर्पोरेट, अगेन द सेकंड मोस्ट पावरफुल, यू नो, इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर, जो कि इस समस्या पे कुछ कारण, मतलब कुछ काम करने के लिए सक्षम है. लेकिन देखिए, बाय एंड लार्ज वी ऑल विल अग्री दैट, यू नो, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है पिछले 100 साल में, यही एक प्रमुख कारण है कि जिसके कारण ये कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ये सब इसी ने इसको बढ़ावा दिया है, और इसी ने ये नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करते गया है. अब इनके लिए नियम क्या है कॉर्पोरेट के लिए, कि भाई आपको एक, आपका जो 2% आपका प्रॉफिट है, वो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई ना कोई समाज सेवा के काम में आपको आपका प्रॉफिट का 2% हिस्सा उसमें आपको यूज करना है. ये सारे जितने भी हमने देखे ना 17 ऑब्जेक्टिव या और भी कोई है, ये सब मिला करके आपको कुल मिला के 2% आपको इन्वेस्ट करना है. बाकी का 98% again it goes into that same business activity which is producing that same kind of pollution, environmental imbalance. तो भाई 2%, I mean 98% के ताकत के सामने 2% कैसे खड़ा रहेगा? I mean it's mathematically impossible. हमें अगर कोई कॉर्पोरेट कहता है कि भाई मैंने इस साल 200 करोड़ रुपए हमने CSR में खर्च किए, बहुत सारे समाज सेवा के काम किए, पर उसका 50 गुना तो वो ऐसी एक्टिविटी में वो चालू है जहां पर से वो पोल्यूशन, मतलब कहीं ना कहीं वो लिंकेज में वो ऑलरेडी वो बना रहता है. तो वो 2% से वो कुछ काम नहीं होता. मतलब यू नीड 99% टू काउंटर विद 98%. दिस इज वेरी फनी केस लाइक दिस फिल्म सत्ते पे सत्ता. ये बड़ा भाई अपने सब छोटे भाइयों का शोषण करता है, और जब खाना खाने का वक्त आता है तो बोलता है भाई ये एक थाली ले लो, इसमें से आप सब लोग खाना खाओ, और वो खुद इतने बड़े टेबल पे वो अकेला वो खाना खाना शुरू कर देता है. आई मीन इट्स सिमिलर केस. 2% CSR application, it's just a symbolic, it does not help much. Who is our next player? That is our social organization. एक
एनजीओ, एनवायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, ये लोग क्या काम करते हैं भाई? आवाज उठाते हैं। सबसे पहला तो कोई कैंपेन चलाते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, धरना देकर के एक प्रेशर बनाते हैं सरकार पे या कोई भी लॉबी के ऊपर। खुद भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट वो खुद एग्जीक्यूट भी करते हैं, वो एक कैपेबिलिटी ऐसी डेवलप करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरली दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट, ये अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। वो हमेशा कोई ना कोई बड़े कॉर्पोरेट के ऊपर, कोई फिलेंथ्रोपिस्ट के ऊपर, अपने फंडिंग के लिए, अपने रिसोर्स के लिए हमेशा डिपेंडेंट है। तो इट्स नॉट अ सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बाय इटसेल्फ। और इसका जो स्केल एंड स्कोप है वो कभी भी, मतलब जो जरूरत है उसके साथ कभी मैच हो ही नहीं सकता, दैट इज बाय डिजाइन। तो यहाँ पे भी ये एक इट्स नॉट अ वेरी फुल प्रूफ डिजाइन, बट ठीक है, दिस इज वन प्लेयर इन द गेम हु इज फॉर द एनवायरमेंट। अब आता है हमारा आम आदमी। ये सबसे बड़ा समूह है, एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है संख्या की दृष्टि से। बट दुख की बात यह है कि ये हमेशा इट्स ही इज हेल्पलेस, इसकी आवाज कोई सुनता नहीं, और ज्यादा करके वो आवाज करता भी नहीं है, वो हमेशा एक्सेप्ट कर लेता है। एंड मतलब ही इज ऑलवेज अ विक्टिम, भुगतना ही लिखा है इसके नसीब में, क्योंकि ही हैज गॉट नो पावर एज सच, एज ए इंडिविजुअल और इवन एज ए ग्रुप ऑफ सिटीजन। अब 4 आदमी खड़े होकर के भी कोई आवाज करते, कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो अब इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी इसका कोई महत्व आज के व्यवस्था में यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता। तो इज जस्ट अ कॉमन मैन विदाउट मच पावर, बिकॉज कोई ऐसी इकोसिस्टम ही नहीं है कि जो उसको सशक्त करे, क्योंकि संख्या उसके पास बहुत ज्यादा है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये एक हो गया हमारा कॉमन मैन, कॉमन सिटीजन। देखिए, कुल मिला के परिस्थिति सब ऐसी है, काम हो रहा है कुछ ना कुछ, बट कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। एक इस तरफ है, एक उस तरफ जाता है, एंड देन अल्टीमेटली इट्स ऑल आउट ऑफ ऑर्डर। अब कुछ और महत्व के फैक्ट्स जरा देख लेते हैं, which is going against the objective of environment. See, today we have a very fundamental, a very structural and systematic flaw in our monetary system, और we can say एक हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी एक फंडामेंटल खामी है, जिसके कारण हम कोई भी जो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट है उसको हम वो स्केल पे कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उसमें लगने वाला पैसा कभी भी जो मनी मार्केट में लगने वाले जो रिटर्न, पैसे के जो रिटर्न है उसके साथ कभी वो compete नहीं कर पाता। So rationality and logic is never in favor of any environmental investment. This is very rational. आप एक बात समझिए कि ऐसा नहीं है कि किसी को करना नहीं है, but it goes against the logic. पैसे की हमेशा अछत है। So if you care for environment or for any other social issues, then आपको समाज बाहर कर दिया जाएगा। I mean, this is the competitive dynamics that will weed you out. आपको कहेंगे भाई इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। This is the reality, and that is, as I said, it is because there is no ROI. अगर कोई एक प्रोजेक्ट हम लेते हैं, नदी साफ करना, वृक्षारोपण करना, उसके पीछे लगने वाला एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट या पैसा या जो भी रिसोर्सेस है, उस पर कोई रिटर्न नहीं है जैसे हमारे दूसरे इन्वेस्टमेंट में है, तो कोई ये काम क्यों करे? दिस इज द रियलिटी, ये वास्तविकता है। एंड अवर टुडेज मार्केट मैकेनिज्म जो हमारा आज का है वो एक डिटीरियोरेशन की तरफ ज्यादा है। इट इज फ्यूलिंग दिस कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिस्टिक लाइफ को ज्यादा प्रमोट करता है, जिसके कारण ये पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो these are all facts we have to consider in mind before we think about the solution. नहीं तो हम खाली सिम्टम्स को ही एड्रेस करते रहेंगे, उसी की चर्चा करते रहेंगे, फाइनली ठोस हाथ में नहीं आएगा, बिकॉज these are the facts which are acting directly against you and you are so powerless against all these points. तो अब हमें ये देखना है कि भाई सारे ये जो स्टेक होल्डर्स हमने देखे उसको कैसे एक लाइन में खड़ा करें। क्या ऐसा हम
ऐसी स्ट्रैटेजी अप्लाई करें कि जिससे हम एक स्केलेबल सोल्यूशन की डिजाइन कर पाए, जो जिसमें हम आम आदमी को भी जोड़ सके, जो कि सबसे बड़ा जत्था है, सबसे बड़ा समूह है यहाँ पर, which is today he is in a very passive mode. तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है नोन एज अ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ओके, ये क्या है भाई, एक समझ लीजिए कि भाई एक गोचर की जमीन है 100 फुट बाई 100 फुट फॉर एग्जांपल। गांव के 3 लोग अपने 3 जानवर यहाँ पे रोज चराने के लिए लेके आते हैं। जितना यहाँ पर घास रोज उगता है उतना वो तीनों जानवर वो खा लेते हैं, मतलब ये एक बैलेंस बना रहेगा यहाँ पे अभी। लेकिन आदमी की एक टेंडेंसी है, एक उसकी जो परिग्रह संज्ञा है ना, जो उसके कारण वो हमेशा अपने गेन को, अपने जो अपने प्रॉफिट को, उसको हमेशा बढ़ाते रहना है। मतलब ये इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी। वो संतुष्ट नहीं होता, उसको लगता है नहीं एक तो ठीक है, अभी ये तो अच्छा अपने को अच्छा चारा खा के अच्छा दूध दे रहा है, वो एक की जगह 3 कर देगा। अब देखिए ये जो एक फिक्स्ड रिसोर्स है, ये यहाँ पर अब वो जितनी उसकी उगाने की क्षमता है और जितना वो डिप्लीट हो रहा है, वो उसमें इम्बैलेंस आ गया। अब ये रिसोर्स डिप्लीट होते गए, और ऐसा एक आदमी ऐसा नहीं सोचेगा, ये तीनों तीन की सबकी ये सेम सोच है। तो अभी क्या हो गया कि ये जो रिसोर्स है वो अपने आप को फिर से इतना रिजुविनेट नहीं कर पाएंगे। बट देन पॉइंट हियर इज दैट it's again it's a rational to behave individually in this way. It's a classical case of conflict between the individual and collective rationality. अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो आदमी जो है वो he is negligent, वो careless है, that is common, I mean that is not fair to blame like that. कॉमन का अर्थ जैसे यहाँ पर है कोई भी ओपन एक्सेस अनरेगुलेटेड रिसोर्स, जैसे हमारे ये नदी नाले, एटमॉस्फेयर, you know, and this property is neither public nor private, it is held jointly by the community, you know, so in short, जिसका कोई you know it's a what we call it as a destiny's child, इसका कोई इसके माँ बाप नहीं है। तो यहाँ पर इसका हम इसको कैसे बढ़ा, मतलब इसके कैसे संभाले इसको। यहाँ पर देखिए बात वही है कि इंडिविजुअल के पास एक्स्ट्रा रिसोर्स को कंज्यूम करने के लिए इंसेंटिव है, ओके, एंड दैट इज व्हाई ही इज बिहेविंग इन दैट वे। वो अपने मतलब वो अपने गेन को, अपने अपने बेनिफिट को वो बढ़ाना चाहता है, उसके पास इंसेंटिव है, बट दैट इज एट द एक्सपेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल, एंड हर आदमी ऐसा ही करेगा ना, सही बात है। सो एज आई सेड अगेन इट्स वेरी रैशनल, इसमें कुछ गलत नहीं है। सो अब हमारे पास यहाँ से सवाल एक ये पैदा होता है फॉर फर्दर ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट हाउ विल यू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेड बाय दोज इंडिविजुअल एंड मेक देम बिहेव फॉर कलेक्टिव गुड, सबका भला हो, वैसा वो एक्शन ले, वैसे वैसे हम क्या करें जिससे वो इस तरह से वो प्रभावित हो। ठीक है, मतलब ये सवाल का जवाब अगर हमें मिल जाता है तो हम ये समस्या को कहीं ना कहीं उसके जड़ से हम एड्रेस कर सकते हैं। अब ये डिसीजन की बात आती है, तब एक अगेन एक कॉन्सेप्ट है, इट इज नोन एज अ गेम थियोरी, इट इज अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज दैट? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत समझने वाली बात है ये। If you understand it from this point, then we can arrive at the solution. एकदम पिन पॉइंट कर सकते हैं, डायग्नोस परफेक्ट करके वहां पर हम अटैक कर सकते हैं। A game is any social interaction जहां पर मल्टीपल प्लेयर्स है, एंड जहां पर हर एक प्लेयर का जो पे ऑफ है, उसका जो फायदा है, उसका गेन है, it is affected not by his own decision but by the others decision. मतलब मैं सिर्फ अपने कर्मों का जिम्मेदार नहीं हूं, दूसरे ने जो कर्म किए है उसकी जिम्मेदारी भी मेरे सर पर है। देखिए ये बात जो हम एक कॉमन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे थोड़ी विपरीत जाती है, बट दिस इज द फैक्ट, और इसी कारण हम फेल हो रहे बार बार। ठीक है, तो
और पे ऑफ, हमारा जो इंडिविजुअल जो गेन है वो दूसरे सब मिलकर के वो तय करते हैं। और समझते हैं जरा, ये एक अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो आपको एनालिटिकल टूल्स प्रोवाइड करती है इस टाइप के सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। और यहाँ पे देखो ऐसा अज्यूम किया है कि जितने भी प्लेयर्स है गेम में ये सारे के सारे लॉजिकल है, कोई लापरवाह आदमी नहीं है, इलॉजिकल इररेशनल नहीं है, एनालिटिकल सोचने वाले लोग हैं और सब अपना फायदा बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि जैसे हम पता है हमें मनुष्य में आहार, भय और परिग्रह की संज्ञा अंदर मौजूद है। मैथुन संज्ञा को अभी यहाँ ये कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं लेंगे, बट दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग अवर पे ऑफ, आई मीन टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज। हमारी जो टेंडेंसी है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसके लिए ये हमारी जो संज्ञाएं हैं वो जिम्मेदार है। सो जब कोई भी प्लेयर अपना एक डिसीजन लेता है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, तो वो पहले वो भी सोचता है कि दूसरा सामने वाला खिलाड़ी क्या क्या उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और उसके आधार पे वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। ऑलराइट, so again, we have a couple of brainstorming questions. How do we apply some type of a social intervention here, कि जिससे हम choices को influence करें? ये जो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रैशनैलिटी का कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे कट करें, ठीक है, सबको एक लाइन में कैसे खड़ा करें। ये जितने भी प्लेयर्स है, चाहे गवर्नमेंट हो, कॉमन मैन हो, एनजीओ हो, कोई भी हो, एक्जैक्टली किस टाइप की स्ट्रेटेजी यहाँ पे चलने वाली है। साम, दाम, दंड और भेद। साम मतलब किसी को समझा के, मतलब इट्स लाइक स्प्रेडिंग अवेयरनेस कैंपेन। दाम, ये हम बनिए तो ये काम में बहुत माहिर है, कैसे किसी को लालच देके, इंसेंटिव दे करके कैसे हमारा काम निकलवा सकते हैं। दंड मतलब वो तो क्या, वो सरकार का काम है, पनिशमेंट देना, एक पुलिसिंग करना। भेद की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम ये तीनों चीज से ही ये समस्या को सॉल्व कर लेंगे। सो हाउ डू वी अप्लाई दिस टेम्पलेट, आई मीन दिस अंडरस्टैंडिंग टू incentivize and engage the whole community for various recycling initiatives, preventive measures and remediation project, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के प्रति हम कैसे लोगों को मोबिलाइज करें, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को कैसे वहां चैनलाइज किया जाता है। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा, इंडिविजुअल आदमी या एक कम्युनिटी के लिए क्या स्कोप है, ये सारे 6 के 6 सवाल को अगर हम एक कॉमन, एक सिंगल क्वेश्चन में हम क्या कन्वर्ट करें कि जिसका डायरेक्ट आंसर हमें सीधा सीधा सोल्यूशन पे लेके जाए, तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा। Requires real strategic thinking here, real brainstorming here. How do we make people do the things which otherwise they will not do? अगर ये सवाल का जवाब हमने ढूंढ लिया, डायरेक्ट आपको सोल्यूशन मिल गया ये एनवायरनमेंट के कोई भी प्रकार के पोल्यूशन से डील करने का। चलिए, थियरी हो गई काफी, अभी सोल्यूशन को हम देखते हैं थोड़ा, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू केस स्टडीज, कि जहां पर लोगों को पूरे मास मोबिलाइजेशन किया गया है एंड कलेक्टिवली अच्छे सोल्यूशन को डिजाइन किया गया है। सबसे पहला हमारा केस है वो है रिसाइकल बैंक का। इट्स अ सोशल गेमिफिकेशन इनिशिएटिव स्टार्टेड इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। ये एक रिवॉर्ड प्रोग्राम है कि जहां पर आप कोई भी रिसाइकलिंग इनिशिएटिव आप ले लो एंड देन यू अर्न सर्टेन रिवॉर्ड पॉइंट। हाई स्कूल के फ्रेंड्स ने ये 2004 में इसका सबसे एक पहला कार्यक्रम शुरुआत किया था। ऑफ कोर्स दे वर नॉट हाई स्कूल, इन द हाई स्कूल एट दैट टाइम, दे वर ग्रोन अप, बट देन उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ये कैसे काम करता है, देखिए, उनकी एक पूरी सिस्टम है, very well structured system, very interesting to understand. अगर आपने कोई भी रिसाइकलिंग का काम किया, आपने कंपोस्ट बना दिया, उसका फोटो क्लिक करके साइट पे पोस्ट कर दिया, you earn certain point. आपने कोई रिसाइकल्ड प्रोडक्ट परचेज करी,
which otherwise वो एक सिंगल यूज प्रोडक्ट है, और उसका आपने कुछ फोटो निकाल के कुछ पोस्ट किया. आई मीन इन सम वे if you purchase this type of goods or commodity, तो आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे. आप कुछ एनर्जी सेविंग के इनिशिएटिव लेते हैं, आपने घर की ट्यूबलाइट बदल के एलईडी लाइट लगा दी, या आपने प्रोड्यूस किया कि भाई पहले मेरा बिल इतना आता था, अभी इतना मैंने कम कर दिया बिकॉज ऑफ दीज इनिशिएटिव्स. सो अगेन यू अर्न सर्टेन पॉइंट्स. आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, यू पोस्ट योर ट्रैवल टिकट. आपने बताया भाई आपका फ्यूल कॉस्ट, जो आप हर महीने 10,000 का पेट्रोल भरते थे, अभी 4,000 कर दिया. it converts into that reward point. कोई प्रकार की ऐसी इको चैलेंज कॉन्टेस्ट, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कुछ सीखा, कोई एजुकेशनल कोई एक प्रोग्राम आपने अटेंड किया, कोई यूट्यूब वीडियो आपने या तो पोस्ट किया, या आपने वो आपने देखा, मतलब सो इवन विद दैट यू कैन अर्न सर्टेन पॉइंट्स. और आपने कोई you pledge your support for certain cause, so again you can earn that point, reward point. अब इससे क्या होता है, देखिए ये इनकी ये टाइप की एक पूरी सिस्टम है रिसाइकल बैंक. यू हैव टू लॉग इन, यहाँ पर आपके पॉइंट्स कितने बैलेंस है वो दिखाएगा. हाउ यू कैन अर्न पॉइंट, व्हाट एक्टिविटीज यू कैन डू, कहाँ पर उसको रिडीम किया जा सकता है, ये सारी यहाँ पर आपको एक सिस्टम आपको दी जाती है. ये इट्स अ गेमिफिकेशन. इट्स एक वो आपकी एक इंसान की एक जो नेचुरल डिजायर है कि उसको सोशलाइज होना मजा आता है, पसंद होता है, एक अचीवमेंट, स्टेटस, सेल्फ एक्सप्रेशन, मैंने कुछ सीखा, वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन. ये जो एक नेचुरल डिजायर है, इसको वो लिवरेज करता है. साथ साथ में बहुत सारे ये एनवायरमेंटल के इनिशिएटिव आ गए. सो अल्ट्रुइज्म, this is also part of that program. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने seamlessly टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, एजुकेशनल प्रोग्राम एंड इंसेंटिव एट द इंडिविजुअल लेवल, ये सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया ये पूरे इनिशिएटिव में. इट इज वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. देखिए ये सारी चीजें हम अप्लाइड जैनिज्म में एक अलग अलग तरीके से हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इट इज सो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. दिस मेजर्स योर रिसाइकलिंग पार्टिसिपेशन वाया योर ऑनलाइन एंगेजमेंट एंड यू कैन ट्रैक योर डेली सस्टेनेबल हैबिट्स. खाली ट्रैक करना नहीं, मतलब वो टेंजिबल, वो पॉइंट्स के साथ आप मेजर कर सकते हैं. एंड द मोर यू रिसाइकल, द मोर यू लर्न, द मोर रिवॉर्ड पॉइंट यू कैन अर्न, एंड देन यू कैन रिडीम एट लॉट ऑफ प्लेसेस. इसमें देखिए अब इन्होंने कैसे पूरी एक पूरी इकोसिस्टम तैयार कर दी, एक अपना ही पूरा विश्व निर्माण कर दिया. इनके साथ लगभग 3 से 4 हजार लोकल बिजनेसेस जुड़ गए, जहां पर इनके ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो आप वहां एनकैश करा सकते हो. यू कैन बाय योर डेली ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, आपका क्लोथिंग, कार, इलेक्ट्रॉनिक, फलाना, मतलब कोई चीज इसमें लगभग बाकी नहीं बची. उसमें बहुत सारी नेशनल ब्रांड ने भी अपना सहयोग दे दिया बाय वे ऑफ लॉट ऑफ प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप. कोका कोला, ये सब बहुत सारे लोग जुड़ गए. आप सोचिए इसमें कोई लोकल ब्रांड, मान लीजिए भाई बास्किन रॉबिन ने बताया भाई आपके पास इतने रिवॉर्ड पॉइंट है तो मैं एक आइसक्रीम फ्री दूंगा, वो ऐसा काम क्यों करेगा, वो अपना लॉस क्यों करेगा इसमें? नहीं, उसमें वो बास्किन रॉबिन्स का फायदा है. पहली बात यह है कि वो हमेशा अपनी जरूरत से ज्यादा ही आइसक्रीम बनाता है, तो उसके पास हमेशा वो सरप्लस एक थोड़ा माल तो बचता ही है. वो आपको जो फ्री देगा वो सरप्लस का माल ही चिपका देगा. दूसरी बात, उसको ये भी मालूम है कि कोई आइसक्रीम खाने आएगा तो वो अकेला नहीं आएगा, वो हमेशा 2-3 आदमी को, दोस्तों को साथ में लेकर आएगा, तो उस बहाने उसकी अपनी जो बिक्री है वो भी बढ़ने लगेगी. सो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन. एवरीवन विल लाइक टू पार्टिसिपेट. ये देखिए कोका कोला, यूनिलीवर साबुन बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं. जो कोल्ड ड्रिंक की कीमत 1 रुपया भी नहीं है, वो आपको 15 से 20 रुपये में वो लोग बेचते हैं. बाकी का पैसा कहाँ जाता है उनका? बाकी का इतना मोटा जो प्रॉफिट है वो उनका सिर्फ अपनी ब्रांड इक्विटी को बनाए रखने के लिए अलग से वो बजट एक अलग होता है. उसके लिए वो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, सेलिब्रिटीज को साइन अप करते हैं एंडोर्समेंट के लिए, वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करेंगे. मतलब बहुत क्रिएटिव तरीके से ये लोग अपनी ब्रांड इक्विटी, ब्रांड की कीमत एक्चुअल
जो कमोडिटी जो गुड्स है उससे कई ज्यादा होती है, तो वहां पे वो खर्च करेंगे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर CSR, वो समाज सेवा का पैसा वो अलग ही है। दिस इज फ्रॉम दैट अदर बजट विच इज मच बिगर देन दैट CSR 2%. So try to leverage that. That is the point. This program, Recycle Bank, along with that partner, it provides that motivation, that behavioral change. You know, इसमें अब बहुत सारी नेटवर्क ऑफ कंपनीज इसमें अब जुड़ गई है, जो कि एक साथ अब एक लाइन में आकर के एनवायरनमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अब क्रिएट करती है। इट प्रमोट्स लॉट ऑफ रिसाइकलिंग इनिशिएटिव। आपने कोई मान लीजिए कोई पेपर रिसाइकलिंग करने के लिए कोई कंपनी को हायर किया, सब्सक्राइब किया, सो यू कैन अर्न सर्टेन पॉइंट। अगर आपने जैसे ग्लास का वेस्ट अगर घर में निकलता है या प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, उसको सेग्रीगेट करके आपने उसके रिसाइकलर को कुछ मटेरियल डिलीवर किया, आप उसकी कुरियर की रिसीट आप चिपका दो, यू नो, एंड देन यू कैन अर्न दैट पॉइंट। आज की समस्या सबसे बड़ी यह है रिसाइकलर्स की कि हमारे पास सेग्रीगेटेड वेस्ट आता ही नहीं है। सारा अगर चूर्ण बन के एक साथ आता है तो वो हम काम नहीं कर सकते। वी नीड दैट सेग्रीगेटेड वेस्ट। तो वो कौन करेगा भाई? वो म्युनिसिपैलिटी के पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। तो यहाँ पर वो इंडिविजुअल इज इंसेंटिवाइज्ड टू डू दैट वर्क व्हिच वाज अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड दैट। अब इनका इम्पैक्ट देखिए, यूएस में इन्होंने लगभग इनके 2 मिलियन मेंबर, 20 लाख मेंबर्स हैं। कुल मिला के 67 म्यूनिसिपैलिटीज ने इनके साथ टाई अप किया है। म्यूनिसिपैलिटीज भी ये रिसाइकल बैंक को पैसा देती है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का काफी सारा बर्डन ये लोग उठा लेते हैं। समझ रहे हैं आप? उनका बहुत सारा काम आप कम कर रहे हो। सो इन लॉट ऑफ वे दे विल आल्सो, गवर्नमेंट विल आल्सो फैसिलिटेट यू इन दिस इनिशिएटिव। और पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ पाउंड का मटेरियल अलग अलग तरीके का वो रिसाइकल हुआ सिंस 2004 टू 18। बहुत, ये तो इट्स माइंड ब्लोइंग। 300 कम्युनिटीज यूके एंड यूएस दोनों जगह पर ये अभी ये प्रोग्राम स्प्रेड आउट हो गया है। सबसे मेन बात यह है कि दिस डिजिटल इंटरेक्शन इट लीड्स टू एन ऑफलाइन एक्शन। नहीं तो होता क्या है कि हम ये जो भी यू नो एक टिपिकल फॉर्मेट में अगर आप सोचिए, वी लर्न लॉट ऑफ थिंग अबाउट दिस सस्टेनेबिलिटी, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट। हम बहुत सारे रोज व्हाट्सएप पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। हमारी ऑफलाइन एक्शन वो की वही है। आई मीन इट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू दैट, बट हियर पीपल एक्चुअली डू दैट एंड इंस्पायर्ड पीपल दे क्रिएट impact upon that consumption cycle also। जो materialistic cycle जो एक विष चक्र जो एक हो गया है, उसको भी ये कट करता है। मतलब उसका सर्कल पहले तो घुमा रहा है और फिर वो साइकिल को थोड़ा थोड़ा वो श्रिंक भी कर रहा है धीरे धीरे। मतलब इट इज लीडिंग इन दैट डायरेक्शन। अगर आपने आपका घर का नल बदली कर दिया, जो पहले 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकाल रहा था, वो अभी आधा लीटर निकाल रहा है, you produce a proof of that and you can earn that point। this is how that system works। ये कार्यक्रम को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। the most innovative company, the outstanding public private partnership, leading recycling program, and this was backed by the former US Vice President Al Gore। यहाँ पे देखिए सीखना ये है हमें अभी, टू सम इट अप, इट्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट। स्मार्ट वेस्ट, हर तरीके का वेस्ट अब इसमें आ गया। सारे के सारे इकोसिस्टम प्लेयर को इन्होंने जोड़ दिया। जो पॉपुलेशन पहले सिर्फ वो नारेबाजी ही सुनता था, क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई, पर करेगा कोई कुछ नहीं। एक अपने घर में झाड़ू नहीं मारेगा, मतलब वो उसके लिए भी हमको काम वाली बाई चाहिए। तो वो जो पहले जो पॉपुलेशन ये सब सुन सुन के कंटाल गया था, वो एक्चुअल वो काम में जुड़ रहा है। दिस इज अ क्राउड सोर्सिंग मॉडल, जहां पर आप कॉमन सिटीजन्स को एंगेज करके उनके द्वारा सोल्यूशन डिलीवर करा सकते हो। हमने देखा था ये कॉमन सिटीजन का जो ग्रुप है ना, तो सबसे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाला है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, बट इट वाज अ पैसिव stakeholder in earlier setup। Here it is very active। This incentive scheme, it
transform citizen effort into a tradable commodity. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने आपके एफर्ट को एक रिवॉर्ड पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया एंड दैट यू कैन ट्रेड लाइक यू नो, एक कोई दूसरी कमोडिटी जैसे होती है इस तरह से आप इसको ट्रेड, मतलब इसको अभी आप कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज एन इम्पैक्ट करेंसी. इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ करेंसी. जैसे हम करेंसी की व्याख्या क्या करते हैं, our conventional money. This is not that money. It is a different form of money which you can exchange in lieu of something else. देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है हमें. How do we finance our social projects? हमारी एक ट्रेडिशनल मेथड जो है कोई भी सोशल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने की, वो होती है थ्रू चैरिटी एंड डोनेशन. जनरली यही हमारा अप्रोच है आज एज ऑफ टुडे. बट दिस वेंचर फिलैंथ्रोपी, इट इज अ वेरी न्यू, आई मीन नॉट न्यू बट क्वाइट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल फॉर फाइनेंसिंग एनी सोशल प्रोजेक्ट. इसमें क्या खास बात है, ये जो फाइनेंसिंग मॉडल है ना, यहाँ पर आपका जो इंटेंशन है वो तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव ही है. You expect some social return on investment, but साथ में जो प्रिंसिपल इस पे अप्लाई हुआ है, जो मुद्दल पैसा इस पे लगा है, तो वो कुछ ना कुछ वो पैसा भी वापस आना चाहिए. Apart from that social impact, there should be some financial return. भले वो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट फिर भी इट इज नॉट अ प्लेन चैरिटी. ओके, यहाँ पर it's a fusion of venture capital, business management and the philanthropic goals. आप जो एक जिस तरीके से कोई एक प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हो, एक बिजनेस वेंचर को, उसी तरीके से काम करना है. बट यहाँ आपको वो फिलेंथ्रोपिक गोल है, तो वो कोई आपको आपके आरओआई पे कोई प्रेशर नहीं है. इट्स अ रिस्क टेकिंग अप्रोच टू फिलेंथ्रोपी, कि भाई आपने कोई एक काम किया, कहीं पे आपने डोनेशन दिया, तो वो पैसा भाई अब तू मुझे वापस कब देगा, भले 5 साल नहीं 10 साल के बाद वापस दे, पूरा नहीं आधा पैसा दे, बट तू वापस कब देगा, ये सवाल पूछना जरूरी है. As I said, it is not so explicitly interested in the profit, but into other return, social investment on return, other environmental, social and governance criteria. यहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेस है, जो सोशल काम में जो अप्लाई होते हैं, इट गेट्स रिसाइकल्ड एंड इट इज अवेलेबल फॉर रीएप्लीकेशन. मतलब आपने आपकी क्षमता उतने ही पैसों में, उतने ही रिसोर्स में, अब आपने आपकी क्षमता को अभी बढ़ा दिया. So this is a new way, I mean it's an innovative way of financing the social objective venture philanthropy. इसका अपना एक पूरी एक दुनिया है, विश्व है. Those who are interested, those who are into this type of social work, they can check this Asian Venture Philanthropy Network. It is based in Singapore. यहाँ इंडिया में इसकी ऑफिस है, अहमदाबाद में है. बहुत बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत क्रिएटिवली ये लोग फाइनेंस करते हैं सोशल प्रोजेक्ट्स को. So as I said, it is a convergence of this 3 attributes: philanthropy, venture capital and entrepreneurship. और देखिए ये जो है, this triggers circular economy. अब आपको आपका जो कचरा है, जो वेस्ट है, जो गंदा पानी है, that you have to see as a resource. आप उसमें से अभी क्या पैदा क्या कर सकते हो, it triggers that thinking now. Recycling initiative को ट्रिगर करता है. And you have to apply market mechanism, with your philanthropic fund. अब आप सिर्फ वो आपने किसी से डोनेशन लिया, काम कर लिया और भूल गए. No, that is not the way. अभी ऐसा नहीं चलेगा. ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, उसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं with reference of this water and sanitation. देखिए ये एक SDG का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक छठे नंबर का एक ऑब्जेक्टिव है, वाटर एंड सैनिटेशन. पिछले 5-6 सालों में हमने देखा स्वच्छ भारत अभियान में
बहुत सारे टॉयलेट हमने बना दिए, सरकार ने भी, बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। लेकिन अब ये जो है ना एक टॉयलेट बोर्ड कोएलिशन, दिस इज अ कोएलिशन ऑफ लॉट ऑफ बहुत सारी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसे टाटा ट्रस्ट, यूनिलीवर, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये सबका एक कोएलिशन है। इनका स्टडी और इनका रिपोर्ट ये कहता है कि भाई इंडिया के जो सैनिटेशन और वाटर सैनिटेशन की जो समस्या है, उसमें तो भाई 4 लाख करोड़ की एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टैप करो तो ये आपकी जो समस्या है वाटर एंड सैनिटेशन, वेस्ट वाटर, आउट ऑफ दैट शिट वाटर, वो सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। डोंट लुक एट इट एज अ प्रॉब्लम, लुक एट इट एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? इट इज नॉट अ हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट। आई मीन बहुत मेटिकुलसली इन लोगों ने इसको डिवाइड किया है। जैसे इन्होंने बताया, ये एक टॉयलेट इकोनॉमी, एक है सर्कुलर सैनिटेशन इकोनॉमी और स्मार्ट सैनिटेशन इकोनॉमी। टॉयलेट इकोनॉमी में क्या हो गया, जैसे भाई टॉयलेट हार्डवेयर, टॉयलेट एनक्लोजर खड़ा करना, बायो टॉयलेट, पर्सनल हाइजीन की कोई प्रोडक्ट को आप बनाओ, मार्केट में उसको बेचो। दिस if this product and commodity is circulated in the market, naturally प्राइमरी लेवल का प्रॉब्लम वो जो है वो सॉल्व होता है। सेकेंडरी लेवल पे भाई अभी ये वेस्ट वाटर जो प्रोड्यूस हुआ, तो यू माइन सम रिसोर्सेज फ्रॉम दैट। ये जो कहता है, देखिए ये थोड़े छोटे अक्षर है बट देखिए इसको, टॉयलेट बोर्ड कोएलिशन, इट सेज दैट दिस इज अ टॉयलेट रिसोर्स, दिस इज नॉट योर शिट। नजरिया देखो पूरा चेंज हो गया, स्विच हो गया। अभी यू कैन हार्वेस्ट लॉट ऑफ थिंग, यू कैन हार्वेस्ट एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल इसमें से निकल सकता है। जो हमारे टॉयलेट का पानी है, कैन यू बिलीव यू कैन हार्वेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल आउट ऑफ दैट? इट इज अ फिजिबल एंड वायबल टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि ये कोई भविष्य की साइंस फिक्शन की बात है, ये सब चीजें एस्टेब्लिश करके इन्होंने ये रिपोर्ट में इसको कोट किया है। यू कैन हार्वेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, प्रोटीन एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स फ्रॉम दिस, और आप इसको ट्रेड करो। सो यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर वेस्ट वाटर, सिवेज, वो समस्या को यहाँ से सॉल्व कर दिया। एंड द लास्ट पार्ट, इट इज दैट स्मार्ट सैनिटेशन। देखो अभी साइंस इतना आगे बढ़ गया है, इफ यू अप्लाई दोज स्मार्ट सेंसर इनटू योर सेप्टिक टैंक, जहां पर ये पूरा जो टॉयलेट का पानी जमा होता है सोसाइटी में या कहीं पे भी, तो यू कैन ट्रैक लॉट ऑफ हेल्थ डेटा फ्रॉम दैट वेस्ट वाटर। कौन से कम्युनिटी ने क्या खाया था, तो क्या उसमें से एक्सक्रीट हुआ, और उसकी जनरल कम्युनिटी हेल्थ कैसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये डेटा की कीमत ही अपने आप में करोड़ों अरबों रुपए की है। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ये डेटा आपसे लिटरली पैसा देकर के खरीदेंगे। So you mine this data, and that will close that loop, and this untapped potential, if you can tap, then you have solved your problem. So this is the classical example of that circular economy. This should be our approach. एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ब्राजील में एक शहर है क्यूरिचिबा। स्टोरी ऐसी है कि वहां पर एक नया शहर था, डेवलपिंग सिटी था, बहुत ही गरीब था, इम्पोवरिश्ड काउंटी। एंड समस्या वहां पे थी एक कचरे की, वहां एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इश्यू था। सो हाउ दे लिवरेज्ड देयर अनटैप्ड रिसोर्सेज वेरी क्रिएटिवली। उनके पास कुछ सरप्लस रिसोर्सेज वो शहर के पास थे, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करके कैसे अपने पर्यावरण का तो जो समस्या थी वो तो सॉल्व किया ही, साथ में जॉब क्रिएशन एंड सिटी रिस्टोरेशन, ये सारी चीजें एक होलिस्टिकली ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। दिस वाज देयर प्रॉब्लम, ह्यूज पाइल ऑफ गार्बेज। अर्बन पॉपुलेशन इनका कुछ 2-3 दशकों में एकदम सडनली शूट अप हो गया था। सो वहां के ज्यादा करके जो पॉपुलेशन थे
दे यूज्ड टू लिव इन स्लम। वहां पर कोई मतलब जैसे हमारे यहाँ मुंबई में है धारावी वगैरह, वैसे अंदर कोई आप ट्रक भी नहीं भेज सकते कचरा उठाने के लिए, वैसी समस्या। और दूसरी बात, वहां की म्यूनिसिपालिटी के पास 1 रुपया नहीं। भाई करे तो क्या करे, अभी ना पैसा ना कोई प्रॉब्लम, आगे पाइलअप होते ही जा रहा है। इन्होंने देखा इनके पास बाकी और तो कुछ नहीं है, पर वो जो शहर है उसके आसपास में बहुत सारा अबेंडेंट एक फूड सप्लाई बहुत वहां तैयार उगता है, अनाज बहुत निकलता है, फ्रूट्स बेसिकली सीजनल फ्रूट्स, क्योंकि आसपास की जमीन बहुत ही उपजाऊ है वहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने के कारण। तो ये उनके पास एक, दिस इज द कमोडिटी विच दे हैव अबेंडेंटली अवेलेबल, बहुत एक्सेसिव थी, वो फेंक देनी पड़ती थी। दूसरा वहां पर था एक म्युनिसिपल बस सिस्टम, वहां की म्युनिसिपालिटी ने बनाई थी। इट वॉज फेयरली अनयूटिलाइज्ड, उसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा था। कारण ये कि वहां के जो स्लम के जो पॉपुलेशन थे वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते, इतनी गरीबी थी वहां पर कि उनके बस का ये नहीं था। देखो एक साधारण गरीब आदमी के लिए रोज के 25-50 रुपये भी उसको खर्च करना, मतलब आप उसको बोलो भाई तू 100 रुपया कमाएगा रोज का, पहले 25 रुपया खर्च करके मेरे घर काम करने को आ, वो नहीं कर पाएगा। आपको उसको पहले वो 25 रुपया देना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपके घर आएगा। बाद में भले वो 100 रुपया आप उसको उसकी कमाई का दो, उसमें से वो काट लो, वो चलेगा, पर वो अपने जेब से वो 25 रुपया भी खर्च करके नहीं आएगा, जबकि उसको मालूम है कि वो जाएगा तो वो 75 का तो फायदा करके ही आने वाला है। तो दिस वॉज देयर सिचुएशन। अब इन्होंने ये कैसे हल किया? देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां के जो भी स्लम थे ना, वहां के हर एक स्लम के किनारे पे हर एक गली में मेटेलिक बिन्स रख दिए, और जो भी वहां पर सॉर्टेड प्री सॉर्टेड गार्बेज वहां पर देगा उसको वो बस का टोकन वो लोग फ्री में देने लगे। बस तो वैसे ही चल रही थी, वो कोई वापरता था नहीं, तो उन्होंने वो फ्री में बांटना शुरू कर दिया। जो कोई वहां से पेपर या कार्टन, वो अगर आप सॉर्ट करके देते हो तो इन एक्सचेंज ऑफ दैट यू गेट अ प्लास्टिक चिट, जो आप बाजार में जाकर के वहां के जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो थे सरप्लस, वो आप उसके एक्सचेंज में आप वो खरीद सकते हो। और स्कूल के बच्चे अगर ये इस टाइप के कार्यक्रम में अगर शामिल होते हैं, गार्बेज सॉर्टिंग एंड डिलीवरी, तो उनको आप नोटबुक उन्होंने देना शुरू कर दिया। अब देखिए इसका क्या असर हुआ। हजारों बच्चों ने ये कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। उनके माँ बाप ने ये जो बस टोकन उनको मिलने लग गए, उससे वो शहर के डाउनटाउन एरिया में ट्रैवल करने लग गए, और वहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी जॉब के लिए, तो अब सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, रोजगार वहां पर मिलने लग गए। ये बस टोकन अब तो वो एक करेंसी की तरह वो चलन में आ गए वहां के लोकल मार्केट में, नॉट ओनली एट द बस स्टैंड बट इवन टू एक्सचेंज सम अदर कमोडिटी फूड, तो इस तरीके से वो चलन में आ गए। सिर्फ 3 साल के पीरियड में वहाँ 100 स्कूल ने मिलकर के करीब करीब 200 टन कचरा एक्सचेंज किया, और उसके बदले लगभग 19 लाख नोटबुक उन्होंने बच्चों को बांटी। खाली पेपर रिसाइकलिंग इनिशिएटिव जो था उसमें ही उन्होंने 1200 पेड़ को उन्होंने, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू सेविंग ऑफ 1200 ट्रीज एवरी डे। लगभग 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट काउंटी, दैट विलेज, वो शहर के लोग वहां पर इन्वॉल्व हो गए। और ये आंकड़े हैं भाई, 11,000 टन गार्बेज फॉर मिलियंस ऑफ बस टोकन एंड 1200 टन ऑफ फूड, ये सारा अब आदान प्रदान होने लग गया। और इसके साथ और भी अनेक कार्यक्रम, अनेक प्रोग्राम, क्रिएटिव फाइनेंसिंग इस तरह से इसमें जुड़ गए कि जिससे वो शहर को भी थोड़ा सुशोभित करे, रिस्टोरेशन, हिस्टोरिक बिल्डिंग को प्रिवेंट करे, जो जिसको पहले वो कोई ध्यान ही नहीं रखता, क्योंकि बेसिक समस्या ही इतनी बड़ी थी, अभी ये सब तो कैसे ध्यान दे पाएंगे। तो ये सारा काम कर दिया, और इसमें वहां की म्यूनिसिपालिटी को 1 रुपये का भी और बर्डन नहीं क्रिएट हुआ, कोई नया टैक्स उन लोगों ने लागू नहीं किया। ये देखिए ये उनकी बस सिस्टम है, आज भी इसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है जब भी सस्टेनेबल सिटीज की बात आती है तभी।
इसमें पिछले मतलब ये 2 दशक के टाइम में 75 से 95 में वो जो क्यूरिचिबा की जीडीपी थी वो ब्राजील से लगभग 48% ज्यादा हो गई। हर एक वहां का सिटीजन लगभग कंट्री से के जो मिनिमम वेज से 3 गुना वो वहां पर कमाने लग गया। इवन बाई ऑल अदर क्राइटेरिया, नॉन ट्रेडिशनल मॉनेटरी गेन्स, हर एक कोई भी कंपैरिजन, कोई भी पैरामीटर ले लो, हर एक में उनका पलड़ा वो भारी ही था। एंड दूसरी एक जो महत्व की बात है कि भाई देखो, जब आपके आसपास का परिसर एक साफ हो जाता है, एक क्लीन वातावरण मिलता है, तब एक जो डिग्निटी का एहसास होता है, होप फॉर द बेटर फ्यूचर, वो आप उसको खाली उसको कल्पना ही कर सकते हो, क्योंकि दैट देन फर्दर लीड्स टू लॉट ऑफ अदर गुड थिंग इन द कम्युनिटी। यहाँ पे हमें सीखना क्या है ये एग्जाम्पल में, ये केस स्टडी में, कि हाउ दिस सोसाइटी मैच देयर अनमेट नीड्स विद द अनयूज्ड रिसोर्स। एंड एक ऐसी एक कॉम्प्लीमेंट्री करेंसी वहां पर बना दी, एक मॉनेटरी इनिशिएटिव इस तरीके का एक चेंज करके, सुधार करके, कि जिसने वहां की लोकल इकोनॉमी को भी सुधारा। सिर्फ पर्यावरण का ही वो भला नहीं किया, वहां की लोकल इकोनॉमी को भी सुधार दिया। इट्स अ सेल्फ एम्पावरिंग मॉडल, जहाँ एक गरीब प्रजा, वो पूरी गरीबी की भी समस्या वहां का उसका भी समाधान हो गया। और इसको यूएन, यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड भी इसको मिल चुका है 90 के दशक में। इसको आप गूगल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। So this is the way we have to think, that how you can bridge the unmet needs of the society with the surplus resources which a community may have। अब यहाँ कोई स्टैंडर्ड बैरोमीटर नहीं है, मतलब हर एक कम्युनिटी के पास कुछ ना कुछ सरप्लस रिसोर्स रहेंगे, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। यहाँ पर किसके पास क्या एक्स्ट्रा पड़ा है विच कैन बी एक्सचेंज। हर काम, हर चीज पैसे में तोली नहीं जा सकती। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस केस स्टडी। लास्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये जो है टाइम बैंकिंग। अगेन दिस इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन द यूएस। बड़ा सिंपल मॉडल है, इट्स अ सर्विस एक्सचेंज सिस्टम। आप आपकी टाइम और स्किल आप स्वैप करिए किसी के साथ में, ठीक है। आपने मान लीजिए भाई मैंने किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखाया और उसके पास से मैंने गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर सीख लिया 1-1 घंटे का, मतलब मैंने किसी को कुछ सिखाया, तो आई अर्न 1 टाइम क्रेडिट। और अगर मुझे कुछ सीखना है या कुछ काम किसी से करवाना है, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग थ्रू द ट्रेडिशनल वे, आई कैन पे देम बाय दिस टाइम क्रेडिट। ओके, और इस तरह से वो टाइम क्रेडिट पूरी चलन में आ जाती है। इससे होता क्या है कि एक समाज में एक नई सोशल कैपेसिटी का निर्माण होता है, जो कि पहले थी बट वो टैप नहीं करी गई थी, ठीक है। और जो समाज की बहुत सारी जरूरतें अभी तक अधूरी है, उसको वो एड्रेस कर लेता है। ये क्यों करे भाई ऐसा? देखो, आज की हमारी जो मार्केट सिस्टम है ना, ये बहुत सारे क्रिटिकल काम जो है हमारे, उसको वो रिवॉर्ड नहीं करती, उसकी कोई कीमत नहीं लगाती। बच्चों को बड़ा करना, घर की जिम्मेदारी लेना, बूढ़े बच्चों को संभालना घर में, समाज में, ये सब की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब एक मान लीजिए भाई, एक वुमेन अगर हाउसवाइफ अगर ये घर के सारे काम करती है, तो उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी कोई मतलब कोई टेंजिबल वैल्यू नहीं है। बट अगर सेम वुमन अगर नौकरी करती है 9 से 5, तब आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये औरत महीने के 50,000 रुपये या लाख रुपये कमाती है। पर ये टाइप के काम की कोई कीमत नहीं है। तो टाइम बैंकिंग में आप वो कीमत उसको दे सकते हो, टेंजिबल वैल्यू असाइन कर सकते हो, एंड देन यू कैन फुलफिल लॉट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव व्हिच मनी कैन नॉट डू। Members can earn time credit by participating in a community events, कि जो कोई भी कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स है वहां पर वो करे। देखो, आज अगर मैं कोई वृक्षारोपण के कार्यक्रम में अपना 1 घंटा दे दूं, तो मुझे कहेंगे ये पागल आदमी है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। बट आई कैन से नो, आई मीन आई हैव अर्न्ड दैट टाइम क्रेडिट व्हिच आई कैन रिडीम समवेयर एल्स। तो यहाँ पर एक
अलग टाइप के रिलेशनशिप, अलग टाइप के ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गए अभी. So there should be a way to honor and reward this type of work. I mean, this is precisely what it addresses, this whole system time banking. This opens up the opportunity to weave a new type of social connection. ऐसे ऐसे काम कि जिसकी कोई जीडीपी में नेशन के कहीं पे वो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, या आपकी बैलेंस शीट में कहीं वो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, उस प्रकार की ये एक वेल्थ क्रिएट करता है ये प्लेटफॉर्म टाइम बैंकिंग का, जो पहले इंटेंजिबल था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कदर थी शायद बट कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए वो कोई करता नहीं था. तो यहाँ पर आपने उसको एक ट्रेडेबल कमोडिटी आपने तैयार कर दिया. दिस फॉस्टर्स दैट कम्युनिटी बिल्डिंग एफर्ट्स, एंड साथ में ये जो हम एक नॉन स्टॉप एक मटीरियलिस्टिक एक परस्यूट एक जो है हमारा आज के समाज में, उस पे ये कहीं ना कहीं ब्रेक लगाता है एक इनडायरेक्ट तरीके से ये टाइम बैंकिंग की व्यवस्था. Why? Because it's a different type of currency which you are transacting. So it's a different type of transaction. It triggers a different behavior and different relationship between people. इसको सूक्ष्मता से थोड़ी समझना चाहिए. एंड ये टाइप की जो कॉम्प्लीमेंट्री करेंसी है टाइम बैंकिंग, या जैसे हमने कहा देखा वो टोकन किरुचिबा के, या इवन वो रिवॉर्ड पॉइंट, ये हमारे बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स जो है इसको एड्रेस करने के लिए ये काम में आ सकता है. ये करेंसी को हम खर्च कर सकते हैं विदाउट बर्डनिंग द गवर्नमेंट और विदाउट कोई नए टैक्स वगैरह कुछ लागू किए बिना. ये आज लगभग 30 कंट्री में ऑलरेडी प्रचलित है. इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक रोटरी क्लब या लायंस क्लब की तरह, एक इंडिपेंडेंट क्लब, एक मेंबरशिप एसोसिएशन की तरह ये काम करता है. ये उनकी वेबसाइट है timebanks.org. बहुत सारे विश्व में बहुत फैला हुआ है, बहुत सारे मेंबर्स है. So many million hours of services are exchanged, transacted through this time banking. So देखिए, अब to sum it up, we have to create a new, completely new economic paradigm. एक नई व्यवस्था को हमें इंस्टॉल करना है कि जहां जो भी ये ट्रेडिशनल जो भी सेक्टर्स है, ट्रेडिशनल जो भी अप्रोचेस है, वो सारे के सारे मर्ज हो जाए, ओवरलैप हो जाए. दे ट्रेड इन दैट सोशल आउटकम. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. सुभाष चंद्र बोस का ये नारा नहीं था. दिस वाज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी. ही ट्रेडेड. उसने ऐसा नहीं कहा कभी कि भाई आप चलो सब मिलकर के 100 रुपया जमा करो, हम एक आजाद हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं और फिर वेपन्स खरीदेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लड़ाई करेंगे, धीरे धीरे आजादी आएगी. नो, डायरेक्ट ट्रेडिंग. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. देखिए, ये उस वक्त के समाज की कितनी बड़ी समस्या थी, गुलामी. आज हमारे लिए जो क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, उसकी जो ग्रेविटी है, उस वक्त वो कितनी बड़ी वो समस्या होगी जितनी आज हमारे लिए ये है. उसको भी हल किया ना, इसी से किया. तो बेसिकली यू हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ मार्केट मैकेनिज्म अराउंड द प्रॉब्लम. देन ओनली यू कैन क्लीन अप योर एनवायरनमेंट. और बहुत सारे ऐसे जो प्रॉब्लम्स है उसको आप एड्रेस कर सकते हो. The common thread across all this initiative is the unprecedented alignment of all the stakeholders. सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, सबके लिए विन विन सिचुएशन हो गई. सरकार भी जुड़ेगी, कॉर्पोरेट भी जुड़ेगा, और सबसे बड़ा जत्था, सबसे बड़ा जो समूह है आम आदमी, वो सब इसमें जुड़ेंगे अभी. बिकॉज सबके लिए अभी इंसेंटिव है. साम दाम दंड, जो दाम है ना, वो इंसेंटिव को आपने अभी यहाँ पर यूज किया. कैसे यूज किया? यू क्रिएटेड एन इम्पैक्ट करेंसी, डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी टू पे फॉर दैट सोशल इम्पैक्ट. एंड दिस इज द आइडिया फॉर दैट क्राउड एंगेजमेंट. आपको एक पूरी इकोसिस्टम, एक पूरा एक नया विश्व का निर्माण करना है.
अगर सॉफ्टवेयर काम नहीं करता ना तो बार बार वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत करो, ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर डालो, नई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करो, वो सारे सॉफ्टवेयर काम करने लग जाएंगे, उसी मतलब उसमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो दिस शुड बी योर टेम्पलेट, ये आपके औजार होने चाहिए, दैट कैन प्रोड्यूस वेरी ड्रास्टिक रिजल्ट। देखो आज के जमाने में ये समस्या से निपटने के लिए अभी वो लीनियर अप्रोच काम नहीं करेगा, 1 और 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, नो, नाउ वी नीड अ डिफरेंट मैथमेटिक्स हियर, 1 और 1 11, 111, 1111, ये करेंगे तब जाकर के ये समस्या से हम निपट पाएंगे। And that is what we call as a solution revolution. This should be your template, this should be your toolkit, this should be your package of strategic thinking to address any type of this environmental pollution. So with that, I'm concluding this lecture. Thank you everyone for attending this lecture. कोई भी अगर इस बारे में कोई चर्चा करनी है तो floor is open now. Thank you. Hey, thank you, Vishalji. I think this was just fabulous. I think a lot of original research, original thought is clearly reflected in what you've spoken today. So thanks so much for such an insightful, culmination of research as such. Yeah. So with this, Sandeep, do you want to orchestrate the Q&A sessions? Yeah. I think, it's been a very interesting session and also very in-depth research to dig out some very interesting examples from across the globe on how this can solve our problem. So let's just open it to questions. I'll allow participants to raise their hands if you wish to ask any questions or share any views. There were some comments from people around what they are doing already. So maybe if you want to, unmute yourself and express your views or ask questions. Purvi, I think you had mentioned there is something of this kind already being done. Maybe if you want to share some thoughts and experience. Sure. Actually, we are taking SIP program, student internship program all over India by Paryavaran Sanrakshan Gatividhi. Can you hear me? Yes, Yes, Purvi, yes. we can. Yeah. Yeah. So every month there are about 80 students are taking participants every month. And there is a 1 week is the full session for training them. And then the whole 3 weeks we are practically training with mentors. And we are doing all these things like जो विशाल जी ने अभी बोला ना हमें कि उनको रिवॉर्ड देना है, उनको सर्टिफिकेशन मिलता है, उनको पूरा ट्रेन किया जाता है कि इंडिविजुअली हम कैसे घर पे सेग्रीगेशन इज द मेन की पॉइंट, देन इको ब्रिक्स, देन वाटर सॉल्यूशन. देयर आर 5 P's जे लाइक जल, जीवन, जंगल, जमीन, सब पे काम करना है. एंड जो फर्स्ट सॉल्यूशन था उनका वो पूरा वहां पे किया जाता है. मतलब आपको पर्यावरण प्रहरी बनना है तो वो रजिस्ट्रेशन करना है. फिर आप क्या हरित घर का कॉन्सेप्ट है तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करो और 5 स्टार होम के सर्टिफिकेट जैसे जैसे आप अचीव करते हो वैसे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है. पर एवरीथिंग यू शुड प्रोवाइड, आपको मतलब वो पूरा आपका फोटो के साथ में, पिक्चर्स के साथ में जो भी कर रहे हैं, इनोवेशन आइडियाज है तो वो सब सबमिशन के सामने आपको मिलता है. तो इट्स मतलब वो जो एक फर्स्ट प्रैक्टिकल जो आपने बताया सॉल्यूशन वो राइट नाउ पूरे इंडिया में शुरू हो चुका है. And then all to, yeah. You are right. Just need is, you need to close the loop. देखो आपने सर्टिफिकेट दे दिया लोगों को कि भाई आपने हरित घर इम्प्लीमेंट किया या whatever initiative they actually implemented. पर वो सर्टिफिकेट से अभी क्या करेंगे? वो लूप अगर आपने क्लोज कर दिया तब आप मतलब बहुत सारे लोगों को अभी इसमें जोड़ सकते हो. इट बिकम्स अ ट्रेडेबल कमोडिटी. बाकी वो सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट तो आपको तभी मिलता है जब आप उस पे काम करते हो. आपका प्रैक्टिकल भी वो रहना चाहिए. जैसे आपने बर्ड फीडर लगाया है तो आपका पूरा मंथ भी बर्ड, क्योंकि उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा ना. सिर्फ फीडर लाना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन.
तो बर्ड फीडर लगाया, फिर आप उसके पिक्चर्स ले रहे हो, फिर देन इट्स अ हॉबी टाइप। अभी जो यंग जनरेशन को, क्योंकि फोटो क्लिक होते हैं, बर्ड्स आ रहे Correct. हैं, देन यू गो कनेक्ट विथ नेचर कि भाई कौन से बर्ड्स आ रहे हैं एक्चुअली आपके यहाँ पे। तो धीरे धीरे दे माइट, क्योंकि अभी शायद किसी लोगों को बहुत सारे बर्ड्स के नाम ही नहीं पता है, जो कॉमन बर्ड्स है वो भी नहीं Right, पता right, है। right, right, right. तो वो एक अपने आप ही फिर वो अंदर से भी आता है, जैसे जैसे आप नेचर से कनेक्ट होते हो कि भाई आप क्या क्या और कर रहे हो। फिर उनका जैसे Absolutely. कॉलेज में से SIPs हो रहा है, तो कॉलेज में भी वो प्रोजेक्ट उनको आगे लेके जाना है कि आपको 100 लोगों तक पहुंचना भी है, तो आप कैसे कन्विंस करेंगे। तो पहले तो उनको पब्लिक स्पीकिंग और वो ट्रेनिंग भी दिया जाता है, देन दे गो फॉर फर्दर। तो उनके कॉन्टेक्ट होते हैं, तो गूगल शीट भी वो लोग करते हैं कि जैसे, और जनरली वो नॉर्मल एडवर्टाइज में करते हैं ना कि आपका मेल ID वगैरह दो, but then they reach for, एटलीस्ट हमें पता है कि वो 100 स्टूडेंट्स का हम उनको टारगेट देते हैं, तो एटलीस्ट दे रीच टू 10 to 15 स्टूडेंट्स। और वो 15 बार जब उनको एक्सप्लेन करते हैं कोई भी चीज, दैट गो स्टार्ट इन दैट बैक ऑफ Correct. माइंड ऑल्सो। तो पूरा मतलब ऐसे प्लान किया। तो जो आपका जो फर्स्ट सॉल्यूशन था वो हम कर रहे हैं, एंड द टाइम वाला जो आपका लास्ट जो सॉल्यूशन था, दैट्स एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज आपने जो Correct, बोला correct, कि correct. कदर है, लेकिन एवरीथिंग वी आर वेरी मोनेटाइज की हर चीज को बस पैसे से तोलना है। Correct, correct. तो मुझे लगता है कि ये वहां पे भी मैं फॉरवर्ड करने वाली हूँ आपका सेशन की, देखिए ये टाइम बैंक जो है वो भी काफी इफेक्टिव हो सकता है। करेक्ट। देखो आप कोई भी सोल्यूशन लो, चाहे टाइम बैंक या रिसाइकल बैंक या XYZ, इंपॉर्टेंट इज अ क्लोज लूप। आपने वो इनिशिएटिव के लिए सर्टिफिकेट दिया, रिकॉग्निशन दिया, अवार्ड्स दिए, बट वो चलन में आना चाहिए। अब मेरे पास वो आ गए सर्टिफिकेट या वॉट एवर फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन दैट यू गेव मी, मैं उसको खाली शोकेस में रखूं तो इट विल नॉट इंसेंटिवाइज मी। It is for practical solution, आपको वो हाँ। आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। देन वी मेक Correct. इको कमांडोज, तो जो सच में कर रहे हैं फिर दे गो फॉर इको कमांडोज बनते हैं उसी में से। हाँ, देन दे गो फॉर हाँ, मेंटरशिप। तो मतलब आपको भी वो प्रमोशन मिलता है कि एवरी टाइम वी आर नॉट मेंटर, हमने तो मेंटरशिप कर ली, अभी जो स्टूडेंट्स है वही इको कमांडोज बने, उन्हीं में से मेंटर्स बनाए जाते हैं कि Correct, अभी आप correct, पूरे correct. बैच को मेंटरशिप करोगे। तो एक मोटिवेशन भी होता है उनके अंदर कि नहीं, मैंने आज इतने लोगों It को should be, yes, सिखाया। self या inspiration सेल्फ आपको इंस्पिरेशन, अंदर से हाँ, वो करवानी है। और सबको इंडिपेंडेंट बनाना। इट्स नॉट कि जस्ट 4 लोग हैं वही पूरे इंडिया को Correct, चलाएंगे, correct, ऐसे नहीं है। correct. हर एक जगह पे ऐसी एक टीम बनानी है, मतलब जो हम लोग अभी माइनॉरिटी में है ना, हम लोगों को खुद को मेजोरिटी में लेके जाना है Correct. कि। और अभी बहुत सारी जगह पे ऐसे हो रहा है कि कुछ काम करते वक्त चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, या फिर क्यों कि वो एनवायरमेंट रिलेटेड है, करने से भी लोग डरते हैं क्योंकि ऑपोज बहुत बड़ा ज्यादा हो जाता है। या तो क्योंकि हमारी सबके गवर्नमेंट इंटरेस्ट सिस्टम, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ना, हाँ, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, लॉट ऑफ अदर इंटरेस्ट, दे आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट। तो अब आपको सब एक लाइन में कैसे खड़ा करोगे? So that is Yes. where this type of जो हाँ, impact तो वही है करेंगे, कि खुद को मेजोरिटी में भी हमें कन्वर्ट Correct. करना है कि आज जैसे एक मारा हो गया ना स्वच्छ इंडिया, तो पहले जो स्पीकिंग लोग बिंदास करते थे, जो रोकते थे ना उनको डर लगता था कि ये सामने आके तो गाली दे जाएगा, या अगर कोई गुंडा टाइप है तो आपको थप्पड़ Correct, भी मार correct, दी जाएगा कि correct. तू कौन होता है बोलने के लिए। आज वो हिम्मत नहीं है लोगों में। अगर आप किसी को बोलोगे कि नहीं आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो आपको सुनेगा, आपके Correct. सामने वो नहीं करेगा। तो वैसे ही हमें वो एक अवेयरनेस लानी है, मतलब एक अपने आप को भी मेजोरिटी में कन्वर्ट करना है, और ये बहुत सारे वे से। सो टुडे सेशन वाज वंडरफुल कि हाँ, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, बस हर चीज में अभी एक है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। Yes. थैंक यू सो मच विशाल जी। Thank you. Thanks. I think Purvi ji, what you're doing is also very, very nice. So I don't know if there is I mean, how do you get associated with this program if anybody wants to? I mean, if you can post some details on that, that will be helpful. You're there in the Applied Jainism group, public group, Purvi ji? या आई एम देयर। और ये पूरा जो है हमारा वो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि करके ऑल ओवर इंडिया हमारा एक मेन है। इट्स फ्रॉम वो गवर्नमेंट से भी कनेक्टेड है। तो ये एक्चुअली वी डोंट टेक नेम, पर अदरवाइज ये RSS का ही है, तो इट्स स्पेशली फॉर, पर दिस इज फॉर ऑल पीपल, सो जनरली वी डोंट टेक नेम, अदरवाइज कुछ कम्युनिटीज फिर दूर हो जाते हैं, पर पर्यावरण इज फॉर एवरीवन। और वो सारे कॉलेजेस से और स्कूल से टाई अप कर रहे हैं कि आपको हर महीने और उनका भी प्रोसीजर होता है, तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जिनको इंटरेस्ट उनको लिया जाता है ताकि अच्छा, रिजल्ट correct. मिले। हाँ, Correct. Okay.
हाँ, Yeah. तो कोई भी इंस्टीट्यूट है हमारे पास या जो लोग जुड़ना चाहते हैं उसमें, तो आप मुझे प्लीज, मैं लिंक भी फॉरवर्ड करूंगी कि कैसे उसमें जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे उसमें और भी प्रोग्राम्स चलते ही रहते हैं हम लोगों के, तो वो भी मैं शेयर करूंगी। Sure. Yeah. Okay. Thanks, Yeah. Purvi ji. Anybody else? हिमांशु जी, आपको कुछ कहना था या? हाँ जी, नमस्ते। हाय, नमस्ते। मैं वीडियो भी ऑन करती हूँ। ओके, हाँ जी, नमस्ते सबको। एंड मैंने भी छोटा सा एक इनिशिएटिव शुरू किया है, और मैं एक बैग्स बनाने का। तो लेकिन ये बैग जो है, एक्चुअली ये डिस्कशन वाटर पे था, तो क्लॉथ का अगर बोलना सही रहेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली, क्योंकि नए कपड़ा बनाने के लिए भी पानी लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं। करेक्ट। तो मैं चाहती थी कि जो घर में पुराने पर्दे होते हैं, पुराने मतलब कि लोग डेकोर चेंज करते हैं, नए पर्दे पड़े रहते हैं, वो पड़े पड़े कई बार सड़ जाते हैं या क्या यूज होता है मुझे पता नहीं। तो मैंने सबको बोला है कि आप मुझे दे दीजिए, तो उसमें से उनको कुछ बैग्स बना के दे देते हैं। और कुछ बैग्स जो हम लोग बनाते हैं, मैं एक ग्रुप से लेडीज को ऐसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जो सिलाई जानती है, जिनके घर पे भी मशीन है, जिनको सीखना है, उनको हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो ऐसा ग्रुप धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, नवशक्ति महिला संगठन ऐसे नाम दिया हुआ है, ऐसे कोई रजिस्टर्ड नहीं है। एंड ये लेडीज जो है चिंदी में से और पुराने कपड़े, और मैं ऐसे पर्दे वाले जो ये होते हैं ना शॉप्स, तो ये सोफा बनाते हैं, उनके पर्सनली मैं जाती हूँ सब शॉप्स पे, और उनको कहती हूँ कि आप अपनी बुक्स जो होती है सैंपल वाली, वो मत फेंकिए, वो कचरे में फेंक देते हैं, तो वो मुझे दीजिए, मुझे फोन नंबर, मैं इवन आई बाय इट, आई गिव यू सम मनी आल्सो, चाहिए तो आप। तो कुछ लोग फ्री में देते हैं, कुछ लोग बल्क में मुझे पैसे से भी देते हैं। तो काफी शॉप्स से मैंने टाई अप किया है, और लाइक मैं जाती रहती हूँ हर शॉप में, तो वो भी हमको दे देते हैं। तो वो जो 800 रुपए मीटर वाला कपड़ा का जो टुकड़ा है, जो एक वेस्ट है, उसको हम अच्छे सुंदर बैग्स बना देते हैं। फिर वो बैग्स आगे सेल तो हो ही जाते हैं, कोई एग्जीबिशन में या किस तरह से भी मैं करके वो भी सेल कर देती हूँ। तो काफी मतलब छोटा इनिशिएटिव है, लेकिन अच्छा चल रहा है फिलहाल। एंड डिम्पल जी भी हेल्प कर रहे हैं मेरे को, और इन्होंने मुझे बोला कि अभी कुछ आदिवासी महिलाओं को भी ट्रेनिंग देंगे, और उनको ये वेस्ट कपड़ा देंगे, और उनको ट्रेनिंग देंगे बैग्स बनाने की। एक छोटा चल रहा है डिम्पल के साथ, अभी देखते हैं कहाँ तक बढ़ता है, जस्ट अ बिगिनिंग। करेक्ट, यस, छोटी सी कोशिश। या देखिए, आपको कोई भी इनिशिएटिव अगर स्केल करना है ना, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको उसको 2 फोल्ड 3 फोल्ड मल्टीप्लाई करना है। आप अकेले कितना कर पाएंगे? या दैट्स राइट। आप उसके अराउंड एक पूरी इकोसिस्टम डिजाइन करिए, चाहे वो कपड़े का रिसाइकलिंग हो या वो XYZ व्हाटएवर, आप जो भी इनिशिएटिव लेते हो, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स को इसमें आप एंगेज कर सके, और उनका भी कोई इंसेंटिव होना चाहिए, मतलब तब जाकर के वो जुड़ेंगे ना। आज मैं भाई क्यों जुड़ू, अपना टाइम क्यों दूं मैं ये काम में, यही सबसे बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन होता है। तो इफ यू कैन एड्रेस दैट, देन यू कैन रियली स्केल। आप कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं इनिशिएटिव। नहीं ले, जैसे भी लेडीज को हम लोग बोलते हैं ना कि आपको हम बैग बना के देंगे, तो हम उनको बैग दे रहे हैं, प्लस वो अपने महंगे वाले पर्दे हमको दे रहे हैं। तो वो एक रहता है लेडीज का कि चलो बैग बना के मिल रहा है, प्लस दे आर गेटिंग डूइंग सम सोशल वर्क। तो ऐसे काफी लेडीज हेल्प कर रहे हैं हमको, तो दैट वेस्ट में से बेस्ट। एंड प्लस और ये लेडीज को मैं घर पे दे देती हूँ ना काम, हमने कोई ऐसे वर्कशॉप नहीं स्टार्ट किया है, तो वो अपने घर से ही करती हैं। लेडीज जो बना रहे बैग्स, उनको सिलाई के पैसे मिल जाते हैं, उनको रोजगार मिल गया, और वेस्ट का बेस्ट हो गया। तो अभी आपसे ये आपका अटेंड करने के बाद लग रहा है कि काफी और कर सकते हैं, इसमें बहुत स्कोप है। वेरी मच अच्छा लगा, थैंक यू विशाल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल जी। बोलिए। ओके, मैं एक आइडिया सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ, मतलब अभी मेरे दिमाग में कि यहाँ हमारे यहाँ पे ना खिचड़ी घर बहुत चल रहे हैं एवरी सैटरडे संडे जनरली, और बहुत सारे मतलब जैन लोग ही है हमारे, ऑलमोस्ट सारे टेम्पल के पास में खिचड़ी घर चलता है। तो वहां पे सारे बेगर्स लोग होते हैं जो आते हैं, 1 घंटा लाइन में खड़े रहते हैं, एंड देन वी जस्ट गिव देम अ फूड फ्री। करेक्ट।
और वो डोनेशन पे चलता भी, नो ऑल दिस थिंग्स। तो डोनेशन तो दे ही रहे, मतलब वो पैसे नहीं लेने, पर क्या हम उसमें कुछ इन्वॉल्व कर सकते हैं? जैसे उनको बिल्कुल फ्री मिल रहा है ना, तो एवरी टाइम वो लोग खिचड़ी घर पे जाके सिर्फ एक संडे, एक उनको पता है 1 घंटा खड़ा रहना है, खाना हो गया। क्या उनको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं कि टाइम बैंक जैसे या कुछ भी, कि Yes, भाई yes, आप definitely. प्लास्टिक That's इतना see, this is the Actually, creative way. This is the yeah. creative way to design a solution. आप किसी को एकदम मुफ्त में कुछ मत दीजिए. भाई हम्म पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, तू खाना ले ले फ्री में, बट इन lieu of that you pay somewhere. No, so Compensate करो. Vishalji, same example what you took for Brazil, it can be that you collect plastic and give, no, for every Yeah. 2 kgs of plastic, Correct, you will get correct, 1 correct, plate of khichdi free. correct. ऐसे करे तो I think it's a, you know, it's very nice, it's a very See, amazing now way. this is the surplus resource of our society. ये जो खिचड़ी घर में खाना खाने आने वाले लोग हैं ना, Correct. शारीरिक सक्षम लोग हैं, काम कर सकते Yeah, हैं, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं. यूजिंग दिस सरप्लस रिसोर्स, आप ऐसी कौन सी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो समाज की, जो अदरवाइज ट्रेडिशनल अप्रोच से वो करना बहुत मुश्किल है. इट्स अ वेरी क्रिएटिव वे. आप इसको यूज कर सकते हो. सारे खिचड़ी घर को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ कि भाई सबको खाना मिलेगा फ्री में, एक नहीं 2 टाइम का मिलेगा, 2 नहीं 4 टाइम का, 1 महीने के लिए सिक्योर हो गए. एक प्रोग्राम पूरा बना दो उसका, सब लोग आएंगे हाँ, उसमें. मतलब मैं वही बोल के एक साथ मिलके हम लोगों को करना चाहिए। मुझे लगता है ये जैनिज्म के प्लेटफॉर्म पे हम अंदर ऐसा कुछ करे कि सबको इकट्ठा करके एक सॉल्यूशन, कि भाई इतना प्लास्टिक और वो भी कलेक्ट करके इसी जगह पे, ताकि वो रीयूज, मतलब वापस वो लोग वही प्लास्टिक बार बार ना दे, उसमें कोई चीटिंग ना करेक्ट हो, करेक्ट. नहीं क्योंकि वो उसमें तो मैंने see the ones moment the plastic gets collected ना पूर्वी जी, it कोई recycling agency के साथ भी टाइप करना yes yes पड़ेगा जो पिकअप कर ले. Okay, see I'm yes just taking a clue from your idea and Vishal ji's ideas of course. Even community fridges जहाँ पे भी run हो रहे हैं, right, there also this yes is done because there also it is essentially the bigger population who's yeah coming to pick up things, right? So it yeah can be more dignified, saying that you're not only taking away stuff, you are also contributing in some. I mean, you're also giving something, right? So it can yeah even be a way of dignifying this whole process. तो मुझे लग रहा है दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे हम कुछ बैठ के अच्छे से सोच के प्लान करके, मतलब सब मतलब दिस इज द जैनिज्म ग्रुप, तो यहाँ पे सारे लोग है, बड़े बड़े लोग, वी कैन टेक दिस ऑन सम next level. Yeah, Jainism, not Jainism. I mean, there are a few non-Jains also. So yeah, but yeah, Yeah. concept कि is कोई there. एक ही नहीं है कि भाई सिर्फ डेरावासी है या स्थानकवासी. इट्स नॉट अबाउट दिस. उसके ऊपर नहीं है. No, Tika, I think this was a good brainstorming actually, Vishalji. I think that's the way we wanted it to be also. So yes. Purvi ji, yeah, if you just want to ping me some personal details, I'm there on Applied Jainism group, me or Vishalji actually. We'll connect later for some more brainstorming maybe. Yeah, sure. Yeah, We'll do. Yeah. Okay, great. Anybody else, any other thoughts or questions? I have some live examples. Can I share? Yes, Puneet ji, of course. Okay. Can you see my video? Yes. Okay, just hold on. Now, if you see over here, I am at my village home right now. If you see over here, there are many homes are there. All are installed with solar. Can you see over there? Then here on the rooftop. So can you see? Yes, Basically, we can see. So I have 4 houses near to me, which has a solar rooftop. Correct. So basically here is the government incentive is there that if you install the solar, your electricity will be free. It's a total net metering they are allowing. And in fact, they are providing, if you generate surplus electricity, they provide you 2 rupees per, unit credit every month. So people are encouraged to do this kind of thing. Whatever Vishalji has said right now, that some government incentive should be there. And if you see, this is my home. It's a zero discharge home, basically. Means whatever water I am getting at home, it's a completely, going into the soil. And again, it is used to, capture the carbon. This is my soak pit area.
So whatever the effluent is coming, it's going into the soil, and the natural garden is, there. So I am capturing carbon also, and I'm not discharging any water into the sewage system. It's naturally recycling, That's great. basically. Yeah. Wonderful. And one more example I would like to share is, see, this is the tree which I have planted in December. Due to some problem, I was not here. So after 2 months, I came here, basically. So due to the sahajivan, मतलब दूसरे प्लांट को मैंने काटा नहीं, एज इट इज रहने दिया. तो अभी इसको मैंने पानी डाला तो ये अपने आप वापस से रिज्यूनेट, मतलब वापस से उसमें क्या बोलते हैं, लीव्स आने लगे. सो वो मरा नहीं, इट सर्वाइव्ड. And I have 2 to 3 examples over here. So basically, if you join with the nature, then nature helps you, basically. Correct. Yeah. No, correct. And just to add to that point of yours, Puneet ji, like at a building level, in fact, putting solar energy on a rooftop, even at a society complex level, I think has been extremely beneficial. In our own society, we've done it, and we are like our electricity bills have reduced by half. So that is definitely there. Similarly, rainwater harvesting also is another big initiative at a building level, which we did. And हमारे यहाँ पहले पानी टेम्पो से मंगाना पड़ता था. We had to buy water, but that has stopped because of the rainwater harvesting thing. So I think then similarly STP water is going to water the plants, and also actually nature is also blooming because of using that recycled water. Even it's more greener actually. So that is the third thing. So I think, there. And then the fourth thing that we are planning to do at a building level is start composting in a much better way. So composting, again, I know it's like, many people regard it as non-Jain, but our perspective is that, anyways, बाद में भी उसमें जीव जंतु पैदा हो ही रहे, and they are getting killed or whatever. This is the natural composting. So whatever food waste is there, yes, I'm throwing over here. It is getting converted into the soil and plant also. Correct. Yes, exactly. So there are open many decomposting. of those. Yeah, that's the only thing I also wanted to say. There are many ways by which you can naturally do it without, like in a very proper way. So it is not necessarily like, okay, कि जीव जंतु की उत्पत्ति हो रही है वगैरह. So I think even composting is a big initiative. We've kind of heard from many forums that even the way our soil is depleting, the rate at which our soil is depleting, it seems like, in the next 60, 70 years, we'll not be able to grow any crops. So I think that is also, composting is also a very easy solution for that you kind of, avoid waste. And at the same time, you are, enabling a greener life as well, right? It's a win-win situation, which nature has only provided. So that is also another appeal to everyone, to kind of encourage some of these things. Yeah, I think, that is, I think, we are a little over time. If anybody has any other questions or thoughts, or else we can just thank Vishalji and go ahead. Hinaben, you wanted to share something? Okay, I think, thank you everybody. Thank you for taking your time. Really appreciate. And please do try to spread the message. Please try to forward, this link. Sessions are conducted on every first Sunday of every month at 11 o'clock. So please do try to join these sessions. As you can see, a lot of effort goes behind every session. And the idea is that it reaches as many people as possible, right? Jitni awareness hum spread kar sakte hai or convert kar sakte hai into some meaningful, impactful work, physical work. That is what is the whole idea of these sessions. So thanks a lot, everybody, for taking out time on Sunday. Really appreciate your presence here. And above all, Vishalji, I think it's a spectacular effort. I know it's something that you've put together on your own. So it thought through on your own, and it just reflects your passion and true love and devotion, right?
So thank you so much for enlightening us on these things. Swati ji, you have a question on how you can join this session regularly. There is Vishal ji, do you want to put the link of Applied Jainism? I don't have it handy. Do you have it handy? 1 second. Yeah, so if you can put, so Swati ji, we are just putting the link. Otherwise, this is my number at least. If you send me a message, we will add you to the group, okay? This is my number. You can send me a message on my personal and I can add you to the WhatsApp group. This is the link. Anybody Yeah. can click this link and join this WhatsApp group. If anybody Yeah, please wants do to know how- join. It's a very nice, engaging group where only such relevant topics and discussions, very meaningful discussions are held. And we have a lot of experts in the group as well who can give us a lot of, more detailed insights into any of our questions. So please do join. Yeah. Okay. Thanks everybody for your time. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.